Good morning, students. Topic for office automation is input and output devices. Yesterday we have done input devices. Now today we will do discussion about output devices. What are output devices? Output devices are used to receive informations from the computer either in soft copy or hard copy. So output devices are used to receive information from the computer either in soft copy or hard copy. So this is the output devices which is generally receiving informations from the computer, and it is either in a soft or hard copies. Different types of output devices are monitor, printer, audio output, projector. So input devices were example mouse, right? Example touchpad. Anything which is done was we were able to see inside a computer. मगर आउटपुट डिवाइसेस में थोड़ा डिफरेंसेस ये है कि इसमें ऐसे आउटपुट एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आपने कंप्यूटर के थ्रू कमांड्स दिया तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि कोई प्रिंटर है तो प्रिंटर के थ्रू आप वो डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल सकते हो, राइट. सो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइसेस. इसका मतलब है कि कोई भी सॉफ्ट कॉपी में कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है उसका मैं अगर प्रिंट आउट निकालूंगा दैट इज आउटपुट, राइट. इनपुट क्या है कि मैंने कोई भी इंफॉर्मेशंस वर्ड में टाइप करी, मैंने कोई भी इंफॉर्मेशंस पीपीटी में टाइप करी, कोई भी इंफॉर्मेशन थ्रू प्रोजेक्ट आई हैव डन. बट नाउ व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट output devices will be, right, generally will be helpful in bringing the inputs in a hard form. So different types of output devices are there: monitor, then printer, audio output, and projector. Monitor was invented in 1897 by Carl Ferdinand Braun. This was the person who invented monitor. The monitor, like a computer, will have a screen, LCD screen, right? Just like a TV, that is called a monitor, right? So every computers will have a monitor. Desktop computers, it was first invented, मतलब सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुआ? It was invented in, right, foreign countries in 1897. किसने इन्वेंट किया था? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन. Computer monitor or a computer display is an electronic visual display for computers. Monitors है, it is a computer display, right? It's an electronic display, right? So generally what we visualize, computer जैसे ही ऑन करेंगे हम, what we see that first it will be Windows operating system. After that my computers may get open, I will get different drives for that. But monitors, what I will see the entire things in a picturized form. Monitors के थ्रू मैं उसको देख सकता हूँ, जो मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया वो देख सकता हूँ, स्क्रीन में क्या चल रहा है वो देख सकता हूँ, राइट. सो आई विल सी मल्टीपल थिंग्स. पर मॉनिटर्स एक्चुअल में जो हम लोग देखते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, मतलब थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट. जो भी इंफॉर्मेशंस आपको विजुअलाइज हो रही है दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल displays, electronic displays. So a computer monitor is an electronic device
that shows picture for computers. इसका मतलब monitors को हम बोलेंगे it is an particular device that is showing the pictures for the computers. Monitors often look slim but to television, similar to television. So just like a TV, it looks like a TV. monitors और मॉनिटर्स का आजकल जैसे कंप्यूटर्स है उसमें हम टीवी भी चला सकते हैं. टीवी ट्यूनर आप डाल दोगे तो वो टीवी हो जाएगा, राइट. अदरवाइज इट विल बी वर्किंग एज ए कंप्यूटर. उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दोगे तो वो एक कंप्यूटर हो जाएगा. वही मॉनिटर आपको ऐसे टीवी यूज़ करना है तो उसमें आप टीवी ट्यूनर डाल दो तो यू कैन यूज़ दैट, राइट. जनरली डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर्स अवेलेबल है. सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉनिटर्स को हम QWERTY मॉनिटर्स बोलेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज आजकल हर एक कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो भी कीबोर्ड्स होते हैं, राइट, वो ज़्यादातर QWERTY कीबोर्ड्स उसको बोला जाता है. उसके बाद अलग टाइप के मॉनिटर्स भी अवेलेबल है, राइट. CRT मॉनिटर्स जैसे कहते हैं, LCD LED मॉनिटर्स. मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होता गया वैसे वैसे यू कैन फाइंड दैट देयर वाज ए चेंजेस इन द स्क्रीन, राइट. टीवी में भी चेंजेस हो गया. अब आज की डेट में टीवी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की टीवी आपको मिलती है, राइट. OLED टीवी, कर्व डायमेंशन टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट. सो पहले जो मॉनिटर्स आते थे वो इतने इफेक्टिव नहीं थे और ज़्यादा उसमें वेट होता था, मगर जो भी उसमें वर्क होता था दैट वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव. तो जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, राइट, at that particular time monitors are also becoming advanced. Monitors has become very much advanced in nature, so that is very important. We were having different types of monitors which is available. Then another type of output device is printer. Printer was invented by Johannes Gutenberg. So printer was invented by Gutenberg, Johannes Gutenberg. In computing, a printer is a peripheral, right. Peripheral means it is connected device. कई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं. जैसे हमने स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स के चैप्टर में हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा. उसमें ब्लॉक डायग्राम में व्हाट वी हैव लर्न दैट देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स में CPUs होता है, प्रोसेसर्स होता है, मेन मेमोरी, राइट, रैंडम, रोम, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है. IC सर्किट्स, ये सारी डिफरेंट कंपोनेंट्स है कंप्यूटर्स के. तो कंप्यूटर जनरली जो बना हुआ है वो कई कंपोनेंट्स को मिलके बना हुआ है. तो कंप्यूटर्स में कुछ चीज़ें होती है वो इनबिल्ट आती है. सेम एग्जांपल्स वी कैन गिव ऑफ ए मोबाइल फ़ोन. ए मोबाइल फ़ोन में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेवरल थिंग्स विच इज़ इनबिल्ट, एंड विदाउट दैट एंड मोबाइल फ़ोन कैन नॉट बी एबल टू रन. मोबाइल फ़ोन में कुछ चीज़ें ऐसी इनबिल्ट होती है जैसे बैटरी. मोबाइल फ़ोन चलाने के बैटरी इंपॉर्टेंट है तो बैटरी रहेगी. देन उसमें मदरबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो मदरबोर्ड रहेगा ही रहे. प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिना प्रोसेसर्स के कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, राइट. तो प्रोसेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ कंपोनेंट डिवाइसेस ऐसे हैं कंप्यूटर्स के दैट इज़ इनबिल्ट. ऑलरेडी जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ था उसी के साथ वो इनबिल्ट रहती है. जैसे कार है, बाइक है, ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट आती है, मगर कुछ चीज़ें जो है दैट यू कैन कनेक्ट विद अ कंप्यूटर. जैसे एग्जांपल के तौर पे पेन ड्राइव. तो पेन ड्राइव आप कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. बिना पेन ड्राइव के भी कंप्यूटर चलेगा, राइट. और पेन ड्राइव में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आप डाल सकते हो. तो एक तरह से आउटपुट डिवाइसेस हो गया.
it means it is having several things, right, which can be several things which are done और कैन बी डन. सो प्रिंटर का भी यही रोल होता है. प्रिंटर का मेन रोल यही होता है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देता है. जैसे एग्जांपल, मैंने प्रोजेक्ट जो है वो मैंने एक सॉफ्ट कॉपी में बनाया हुआ है, राइट. वर्ड में, MS वर्ड में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है 50 पेज का. अब उसके बाद मेरे को अगर उसको प्रिंट निकालना है तो मुझे प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि प्रिंटर का फंक्शन ही यही होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है. कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, चाहे वर्ड में हो, राइट, चाहे वो पावर पॉइंट में हो, चाहे एक्सेल में हो, किसी में भी डॉक्यूमेंट्स हो, कहीं इमेज हो, वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देता है, राइट. सो प्रिंटर जो है उसको हम पेरिफेरल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, राइट. प्रिंटर इनबिल्ट कंप्यूटर के साथ आपको नहीं मिलेगा, मगर प्रिंटर को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो, राइट. सो कहने का मतलब पेरिफेरल, राइट. कंप्यूटर इज हैविंग सेवरल कंपोनेंट्स विच आर इनबिल्ट एंड सेवरल कंपोनेंट्स विच आर पेरिफेरल. जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया कि कई प्रोडक्ट जो है वो इनबिल्ट है ही उसमें, उनके बिना तो कंप्यूटर्स कैन नॉट बी रन. बट कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, मगर वो कंपोनेंट्स भी यूजफुल है. जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर की जब रिक्वायरमेंट होगी तो प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हो. प्रिंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के पास पड़ा रहेगा, राइट. So printer is a particular peripheral which is connected with the computers. So in a computing, a printer is a peripheral which makes a persistent human readable representation of graphics or text on paper or similar physical media, right. So functions of a computer is it is able to, right, able to make or print a documents or a paper, right, and in a form of a graphics. Different types of printers are available, right. First type of printer is called impact printer. Impact printer makes contact with the paper. It usually forms the print image by pressing an inked ribbon against the paper using a hammer or pins. एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक, डेजीविल एक्सेट्रा, राइट. प्रिंटर बहुत टाइप के होते हैं. इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कि एक प्रिंटर ऐसा होता है जिसमें डॉट मैट्रिक्स टाइप, कई फैक्ट्रीज वगैरह में आप जाओगे, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट, यहाँ जयपुर में जाओगे, कई ट्रांसपोर्टर्स हैं, राइट. नवागढ़ में जाओगे तो कई ट्रांसपोर्टर मिलेंगे आपको, तो उनके पास जो प्रिंटर रहता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता है. मतलब उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें एक इंक्ड रिबन होता है और हैमर होता है और एक पिन होता है, पिन जिसके थ्रू वो टाइप होता रहता है. जैसे कोई भी रेलवे स्टेशन में आप जाओगे तो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है क्योंकि वो टिकट को प्रिंट करता है, राइट. तो जहाँ पे कंटिन्यूअस 24 आवर्स अगर प्रिंटिंग करना है तो उसमें ज़्यादातर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ होता है. और डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स जो है उसकी इंक और उनका विजुअलाइजेशन इतना प्रॉपर नहीं होता है, इतना क्लियर नहीं होता है, राइट, कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ प्रिंटर. तो इम्पैक्ट प्रिंटर है. इम्पैक्ट प्रिंटर मेक्स ए कॉन्टेक्ट विद द पेपर. It usually forms the print image by pressing an inked ribbon against the paper using a hammer or pins. एग्जाम्पल है उसमें डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल प्रिंटर, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, डेजीविल. देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट यूज ए स्ट्राइकिंग डिवाइस टू प्रोड्यूस कैरेक्टर्स ऑन द पेपर. And because these printers do not hammer against the paper, they are much quieter. Example, inkjet laser printer. तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है जैसे हमारे कॉलेजेस में
ऑफिसेस में सब इंजेक्ट प्रिंटर होता है, राइट। इंजेक्ट प्रिंटर ये होता है कि उसमें जो पेपर क्वालिटीज़ है, राइट, जो प्रिंटिंग क्वालिटीज़ है वो इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी होती है। सिंपल फंडा है, राइट, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कंपेयर टू आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में बहुत ट्रेडिशनल और एक हैमर यूज़ होता है, जैसे कोई टाइपराइटर था। पहले टाइपराइटर्स, आज से कुछ साल पहले टाइपराइटर यूज़ होते थे, तो उसमें भी वही था, राइट। उसमें भी जो प्रिंटिंग होती थी उतनी प्रॉपर या एक्यूरेट नहीं होती थी, राइट। मगर और बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, एक टाइपराइटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। उसके बाद जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर्स में डॉक्यूमेंट टाइप होने लगे और उस पर कोई भी आवाज़ नहीं आता है, तो बहुत ही ज़्यादा क्वाइटर कहते हैं कि मतलब शांत है। तो अभी जो प्रिंटर आ रहे हैं उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे तो उसमें कोई भी साउंड्स वगैरह नहीं आपको सुनाई पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेल एडवांस, इट इज़ हैविंग ए वेरी गुड टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई दे आर एबल टू यूज़। तो जितने भी ऑफिसेस वगैरह है सब में आपको प्रिंटर जो मिलेंगे वो इनजेक्ट प्रिंटर मिलेंगे, लेज़र प्रिंटर होता है, राइट। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप कलर प्रिंट करना चाहते हो तो कलर प्रिंट भी कर सकते हो। उसके लिए आपके पास इंजेक्ट प्रिंटर अवेलेबल है, लेज़र प्रिंटर अवेलेबल है। तो ये सारे प्रिंटर जो होते हैं बहुत ही एडवांस है, राइट। इसमें ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड, सारी टाइप की प्रिंटिंग्स आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट, राइट। सो प्रिंटर्स, other types of output devices are audio output device. ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस मतलब कोई भी ऑडियो, मतलब कि म्यूजिक सिस्टम, राइट। स्पीकर्स है, उसमें हेडफोन्स है और साउंड कार्ड है। तो ये जितने भी डिवाइसेस है उसको हम आउटपुट डिवाइसेस करेंगे, क्योंकि वो पूरा जो साउंड्स है उसका वो पूरा बाहर लोगों को सुनाई देता है उसका। एक कॉलेज में हम प्रोजेक्टर रूम में एक स्पीकर अच्छे से कनेक्ट कर दे, देन वी कैन हियर द साउंड्स विच इज रनिंग इन द कंप्यूटर्स, राइट, द स्लाइड्स विच इज रनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो हियर द म्यूजिक, राइट। सो बिग स्पीकर्स, right, are audio output devices. The term audio output device refers to any device that attaches to a computer for the purpose of playing sounds. Audio output devices वो डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स के साथ एक पेरिफेरल, जैसे हमने एग्जांपल आउटपुट डिवाइसेस का, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जनरली वो एक पेरिफेरल डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है जिसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्पीकर भी होंगे तो वो भी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, स्पीकर मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, स्पीकर जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो आउटपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि उसमें जो आउटपुट है, ए म्यूज़िक, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग है, कोई भी इंग्लिश सॉन्ग है, तो आपको सब सुन सकते हो कि अगर आपने कंप्यूटर्स पे स्पीकर को कनेक्ट कर दिया तो आप अच्छे से सुन सकते हो उसको, राइट। सो स्पीकर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए साउंड, राइट। सो टर्म कैन ऑल्सो रिफर्स टू ए कंप्यूटर साउंड कार्ड। सो स्पीकर एग्जाम्पल है, स्पीकर में भी बहुत टाइप्स है, राइट। कॉम्पैक्ट स्पीकर आते हैं, कोई कंप्यूटर्स के लिए छोटे स्पीकर आते हैं, कोई पार्टीज वगैरह के लिए हाई साउंड सिस्टम, राइट।
स्पीकर्स में जो बास वगैरह है, जो आउटपुट है उसका ज़्यादा निकलता है। तो बड़ी बड़ी पार्टीज़ के लिए बड़े बड़े स्पीकर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमारे पास स्पीकर्स में इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, छोटे स्पीकर से लेके बड़े स्पीकर्स भी अवेलेबल है। डिपेंड अपॉन आउटपुट, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मगर है वो सब आउटपुट डिवाइसेस। मतलब वो कोई भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स उसके साथ कनेक्ट हो जाता है इजीली, और इजीली आप कहीं भी ले भी सकते। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि पहले तो थ्रू वायर आपको एक स्पीकर कनेक्ट करना पड़ता था, पर अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ये आया कि अब ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए। मतलब आप ब्लूटूथ बिना किसी वायर के कनेक्ट करते, कोई भी मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ अभी कॉमन चीज़ है। तो ब्लूटूथ से पूरा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा, स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा, और स्पीकर्स में जो आप चाहो मोबाइल फ़ोन से आप सॉन्ग्स बजाओ, गाने बजाओ, तो उस पर सारे आपको सुनने को मिलेंगे। तो स्पीकर से उसकी टेक्नोलॉजी है वो भी डिफरेंस है। अलग अलग कंपनीज स्पीकर्स बनाती है, राइट, और डिपेंड करती है कि क्या क्वालिटीज़ है। सेकेंड टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस है हेडफोन। हेडफोन में भी हम देखें, मोबाइल फ़ोन के हेडफोन है, कंप्यूटर्स के हेडफोन है, राइट। उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है अवेलेबल, राइट। जैसे ब्लूटूथ हैंडसेट है, वायरलेस हैंडसेट्स है, राइट। हैंडसेट के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? एक वायर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो हेडफोन आते थे तो उसमें साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, और ये जितने भी हेडफोन थे वो जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। अभी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ये हुआ है कि हेडफोन जो है उसमें आपको डोल्बी डिजिटल साउंड सुनाई को मिलेगा, राइट। उसके साथ वो फुल्ली एडवांस है, क्योंकि वो उसमें कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, सीधा ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन डू दैट। सो दैट इज़ द एडवांटेज फॉर ए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बट हेडफोन का काम क्या है कि जो भी इनपुट है, जो भी हम गाना सुन रहे हो, वो हमको हमारे कान में सुनाई देगा, क्योंकि हमने वो ईयरफोन लगाया हुआ है। सो दैट इज़ द एडवांटेज audio output devices is giving, right? So that is headphones. It's very important. Last type of audio output device is sound card, right? Sound card कह सकते हो, memory card कह सकते हो. This all is responsible for an audio output devices. तो audio output का मतलब होता है audio output, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, आपको सुनाई देगा, वही आपको, जस्ट लाइक ए रेडियो। तो रेडियो किस में आता है? ऑडियो विजुअल, नहीं सॉरी, ऑडियो दैट यू कैन हियर। अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस। सो प्रोजेक्टर वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रांस, right, by Charles Francis Jenkins. Projector or image projector is an optical device that projects an image for moving images or surface, commonly a projection screen. तो प्रोजेक्टर का एग्जांपल है, यहाँ भी हमारे क्लास में हम लोग जनरली थियोरी के लेक्चर्स है थ्रू स्लाइड्स लेते हैं। तो प्रोजेक्टर का काम ये होता है कि एक वॉल पे, दीवार पे एक बड़ी स्क्रीन लगी रहती है। जैसे कि मूवी फिल्म देखने आप जाओगे तो मूवी फिल्म कैसे आपको दिखाई देगी? एक बड़ी स्क्रीन होगी, वाइड स्क्रीन, और उसमें पूरा वो थिएटर रूम में पूरा अंधेरा करके प्रोजेक्टर से वो मूवी चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक लाइट वही स्क्रीन पे पड़ती है, और जो मूवीज़ कंप्यूटर पे चल रही है वही मूवी आपको वो स्क्रीन में दिखाई देगी, राइट। तो प्रोजेक्टर का काम ये होता है कि जो भी इनपुट है,
राइट, चाहे वो लैपटॉप में चल रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर पे चल रहा हो, या टीवी पे चल रहा हो, वो प्रोजेक्टर है वो पूरा जो इनपुट है वो बाहर स्क्रीन में उनको दिखाएगा, राइट। तो कंप्यूटर्स पे कोई भी मूवी चल रही है, सेम थिंग दैट विल बी विजिबल इन द प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन में दिखने को मिलेगी। ये उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो प्रोजेक्टर का मतलब ये है कि जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, राइट। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस है उनकी खासियत यही है, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो इनपुट लेके आउटपुट वो में चेंज करता है, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज फॉर द आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या है कि जो भी इनपुट है वो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से आप इनपुट दोगे, एग्जांपल कीबोर्ड से आप इनपुट दोगे तो वो अंदर आपको आप लिख सकते हो, वो इनपुट है। मगर कोई कमांड दोगे, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे तो प्रिंटर से वो निकलेगा, वही डॉक्यूमेंट लिखे निकलेगा जो कि आपने टाइप किया हुआ है या सिलेक्ट किया हुआ है, कोई और नहीं निकल सकता। पर इनपुट में आप कैसा भी इनपुट दे सकते, मतलब कोई भी आप चीज़ें टाइप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट। मगर एक बार प्रिंट हो गई तो उसमें क्या करेक्शन करोगे आप, पर एक बार मैंने टाइप कर दी तो वो चेंज हो सकती है। सो प्रोजेक्टर और इमेज प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स एन इमेज और मूविंग इमेज सरफेस कॉमनली ए प्रोजेक्शन स्क्रीन, उसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन स्क्रीन है वो। सो दैट इज आउटपुट डिवाइस। नाउ we have done input and output devices. Apart from this, there are other examples of output and input devices. हमने जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में डिस्कशन किया है, इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आप लिख सकते हो। तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि जितने मैंने एग्जाम्पल कराए, राइट, इसके अलावा भी अगर आप गूगल से सर्च करके लिखते हो देन ऑल्सो इट्स वेरी मच करेक्ट, वो सही है एकदम। ये तो डिपेंड करता है कितना नॉलेज आपको है, राइट। हो सकता है कई स्टूडेंट सेम टू सेम मैंने जो कराया वही चीज़ दे आर गोइंग टू राइट, ये भी करेक्ट है, राइट। बट इफ़ यू वांट सम मोर एग्जांपल्स देन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। So what is the conclusion that we can study or we should study? That is, input and output devices are indispensable components of a personal computer, right? So input and output devices are indispensable. Indispensable means it is that personal computer, they are necessity, right? Necessities of a कंप्यूटर डिवाइसेस। इन डिस्पेंसेबल का मतलब होता है कि जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर के बिना प्रिंटर नहीं चलेगा, प्रिंटर के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, मतलब नो सॉरी, कंप्यूटर के बिना प्रिंटर नहीं चलेगा, मतलब एक दूसरे की हेल्प चाहिए, राइट। अकेला प्रिंटर काम नहीं कर सकता, अकेला कंप्यूटर से भी आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, तो दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो कंक्लूजन यही है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर्स के, बट एट द सेम टाइम दे आर इंडिस्पेंसेबल, मीन्स यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ देम, आप अलग नहीं कर सकते हो, राइट। मैं चाहूँ कि मैं प्रिंटर के बिना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। या मैं प्रिंटर मेरे पास है और उसमें मैं सब कुछ टाइप कर लूँ तो प्रिंटर में कुछ टाइप नहीं होगा, उसमें खाली प्रिंट ही होगा। तो जो जिसका काम है, राइट, वही उस चीज़ में होगा। तो इट इज़ indispensable means it is, right, you cannot separate both of them, but both of them can be used simultaneously, एक साथ आप यूज कर सकते हो उसको, एक के ऊपर दोनों निर्भर है, they are dependent on each other. So conclusion is, input and output devices are, you cannot separate input and output devices. Input and output devices, they work hand in hand.
act as an intermediary between the user and the machine is in the process of communication. Right, so input output devices are helping as a, or they are acting as an intermediary, मतलब as a middleman between users and the machine, user and machines. It is playing a very important role. Then are the beginning and the end of all processes instruction executive in the machines. Right, without these devices no operation can be effective. So these devices are very much necessary. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम आज की डेट में नहीं कर पाते. जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी सबसे प्राइम नेसेसिटीज एक ह्यूमन बीइंग की बन गई है, जो कि मोबाइल फ़ोन है. मोबाइल फ़ोन आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेसेसिटी हो गई कोई भी एक पर्सन के लिए. राइट, तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो डिज़ायर है, राइट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होती जाती है. राइट, पर कौन सी चीज़ ज़रूरी है, उसका इनपुट डिवाइसेस भी ज़रूरी है हमारे लिए. विच पीपल, ऑफिसर्स के लिए, कंपनीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए वी रिक्वायर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट आज की डेट में स्कूल्स में होती है. कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट आज की डेट में इंडस्ट्रीज में हो रही है, बैंक्स में हो रही है, हर जगह कंप्यूटर, घर में हो रही है, हर जगह कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट है. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस है दिस जो दे आर वेरी मच नेसेसरी फॉर, राइट, इन टुडेज टाइम और टुडेज scenario. It is utmost necessary. Thank you.